हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल MS सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को MCQ ऑन एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन बताने वाला हूं, जो कि थर्ड यूनिट है डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर का। मैंने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और यूनिट नंबर 2 डिज़ाइन ऑफ स्टील कनेक्शंस पर MCQ अपलोड किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। ड्यू टू न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड ओमिक्रॉन 80% चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और निशान सर आपको आपके एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट्स के यूनिट पर MCQ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते आज का हमारा लेक्चर MCQ ऑन एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, partial safety factor for concrete in limit state of cracking is option A 1.1, option B 1.2, option C 1.3, option D 1.5. The right answer is 1.3. Question number 2, partial safety factor for steel in limit state of cracking is option A 1, option 2 1.2, option C 1.3, option D 1.5. The right answer is 1. Question number 3, characteristics strength of material is the value of material strength below which not more than -% of the test result are expected to fall. Option A 20, option B 15, option C 10, option D 5. The right answer is 5. Question number 4, for design purpose the compressive strength of concrete in the structure shall be assumed to dash time the characteristics strength. Option A 0.57, option B 0.67, option C 0.77, option D 0.87. The right answer is 0.67. Question number 5, for mild steel Fe250 Xmax is option A 0.53 times of D, option B 0.48 times of D, option C 0.46 times of D, option D 0.5 times of D. The right answer is 0.53 times of D. Question number 5, for Fe415 steel Xmax is option A 0.53 times of D, option B 0.48 times of D, option C 0.46 times of D, option D 0.5 times of D. The right answer is 0.48 times of D. Question number 7, for Fe500 steel Xmax is option A 0.53 times of D, option B 0.48 times of D, option C 0.46 times of D, option D 0.5 times of D. The right answer is 0.46 times of D. Question number 8, if Xu is less than Xmax the section is option A under reinforced, option B balance, option C over reinforced, option D none of above. The right answer is under reinforced. Question number 9, if Xu is greater than Xu max the section is option A under reinforced, option B balanced, option C over reinforced, option D none of above. The right answer is over reinforced. Question number 10, if Xu is equal to Xu max the section is option A under reinforced, option B balanced, option C over reinforced, option D none of above. The right answer is balanced. Question number 11, what is the value of Xu max if depth of beam is 500 and steel Fe415 grade? Option A 240 mm, option B 256 mm, option C 230 mm, option D 250 mm. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला देखना होगा एक्सयू मैक्स का फॉर्मूला फॉर Fe415 ग्रेड। फॉर्मूला है 0.48 टाइम्स ऑफ डी। जब आप लोग सॉल्व करोगे 0.48 मल्टीप्लाई बाय अपने पास गिवन है 500 डी। आपको जब कैलसी में सॉल्व करोगे आंसर आएगा 240 mm। द राइट आंसर इज 240 mm। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया एक्सयू मैक्स Fe415 ग्रेड है
0.48 टाइम्स ऑफ डी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Question number 12. What is the value of Xumax if depth of beam is 600 mm and steel Fe 500 grade? Option A 240 mm, Option B 256 mm, Option C 276 mm, Option D 288 mm. यहाँ पे फॉर Fe 500 ग्रेड स्टील Xumax का फॉर्मूला है 0.46 टाइम्स ऑफ डी। यहाँ पे डेप्थ गिवन है 600 mm, 600 mm आपको डेप्थ गिवन है, 0.46 मल्टीप्लाई बाय 600 करोगे तो आंसर आएगा 276 mm। द राइट आंसर इज सी 276 mm। प्लीज कैलसी में सॉल्व करके देख लो। Question number 13. A beam having dimension 230 by 450 mm effective is reinforced with 4 bars of 16 mm dia on tension side. If M20 grade and Fe415 steel is used, what is the value of XU? Option A 175.34 mm, Option B 105.62 mm, Option C 190.34 mm, Option D 100 mm। यहाँ पे आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सयू की वैल्यू है 0.87 इंटू एफ वाई ए एस टी डिवाइड बाई 0.36 एफ सी के बी। ये फॉर्मूला है एक्सयू का। ये फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर बी की वैल्यू गिवन है 230 mm, डी की वैल्यू गिवन है 450 mm, M20 गिवन है मतलब एफ सी के गिवन है 20, एफ वाई गिवन है 415। सबसे पहले ए एस टी निकाल लीजिए। 4 बार्स ऑफ 16 mm डाया, ए एस टी इजिकल टू 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर करोगे तो 804.24 आएगा। मैंने वैल्यूज पुट किया, 0.87 कांस्टेंट है, एफ वाई की वैल्यू 415, ए एस टी आपने यहाँ पे निकाला 804.24 डिवाइडेड बाय 0.36 कांस्टेंट। एफ सी के क्वेश्चन में गिवन है 20, बीबी क्वेश्चन में गिवन है 230। सॉल्व करोगे 175.34 mm आएगा। तो राइट आंसर है 175.34 mm। Question number 14. A beam having dimension 450 by 560 mm effective is reinforced with 4 bars of 20 mm dia on tension side. If M20 grade and Fe250 steel is used, what is the value of XU? Option A 125.34 mm, Option B 84.36 mm, Option C 90.34 mm, Option D 50 mm। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले XU का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, B की वैल्यू गिवन है 450 mm, D की वैल्यू गिवन है 560 mm, FC के 20 है, FY है 250। सबसे पहले AST निकाल लीजिए। 4 बार्स ऑफ 20 mm 4 पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर करोगे तो 1256.64 आएगा। XU का फॉर्मूला 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइड बाई 0.36 एफ सी के बी। सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करो। द राइट आंसर इज 84.36 mm। सॉल्व करो प्लीज, कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज गिवन है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले में आप लोगों को वैल्यूज पुट अप करनी है। क्वेश्चन नंबर 15. कैलकुलेट AST required for RCC section 200 by 450 mm effective to resist an ultimate bending moment of 150 kilonewton meter. Assume M30 concrete and Fe 415 steel. Option A 1015 mm square. Option B 222 5 mm square. Option C 1115 mm square. Option D 314.16 mm square. यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए AST का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। AST का फॉर्मूला है 0.5 FCK डिवाइड बाई एफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MD डिवाइड बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बी इंटू डी। बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है और AST की वैल्यू बोलनी है। बी गिवन क्या क्या है देख लीजिए। बी गिवन है आपको 200, डी गिवन है 450, एफ सी के गिवन है 30, एफ वाई गिवन है 415, एम डी की वैल्यू गिवन है 150 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे 150 किलो न्यूटन मीटर है तो सबसे पहले आपको इसको न्यूटन एम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 150 इंटू 10⁶। सॉल्व करो, वैल्यू बोलो।
जब सॉल्व करोगे आप लोग तो आंसर आएगा 1115 mm²। कैल्सी में सॉल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर Fe250 mu लिमिट इज। Fe250 के लिए mu लिमिट क्या है? ऑप्शन ए 0.149 FC के BD स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.138 FC के BD स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.133 FC के BD स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.160 FC के BD स्क्वायर। द राइट आंसर इज 0.149 FC के BD स्क्वायर। Question number 17 for FE 500 MU limit is option is 0.149 FC के BD square, option B 0.138 FC के BD square, option C 0.133 FC के BD square, option D 0.160 FC के BD square। The right answer is 0.133 FC के BD square। Question number 18 for FE 415 MU limit is option A 0.149 FC के BD square, option B 0.138 FC के BD square, option C 0.133 FC के BD square, option D 0.160 FC के BD square। The right answer is 0.138 FC के BD square। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछ सकता है, आपको B और D और FC के की वैल्यू गिवन रहेगी और Fe 415 250 या 500 गिवन रहेगा। आपको निकालना है MU लिमिट। ठीक है, मैंने तीनों भी MCQ के अंदर बता दिया क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखिए, अगर रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है 0.149 या 0.138 या 0.133 तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। Question number 19. In under reinforced singly reinforced beam, concrete crushes at its maximum strain. Option A 0.35%, option B 0.25%, option C 0.45%, option D 0.55%. The right answer is 0.35%. Question number 20. The ratio of limiting value of depth of neutral axis and the depth of the section of a singly reinforced beam is equal to option A 0.0045, option B 0.0035, option C 0.0055, option D 0.0065. The right answer is 0.0035. Thank you for watching this video. Please like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को MCQ ऑन डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट एंड बॉन्ड बताऊंगा, जो कि 4th यूनिट है डिजाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर का। थैंक यू।